23.7 Adjustment of partners' capital. Sometimes at the time of admission, the partners agree that their capital be adjusted in proportion of their profit sharing ratio. For this purpose, the capital account, the existing partners are prepared, making all adjustments on account of goodwill, general reserve, revaluation of assets, and settlement of liabilities. The actual capital so adjusted will be compared with the amount of capital that should be kept in the business after the admission of a new partner. The excise, if any of the adjusted actual capital or the proportionate capital, will be either be withdrawn or transferred to current account, and we can say as a vice versa. So the partners may decide to calculate the capital which are to be maintained in the new firm either on the basis of new partner's capital and his profit sharing ratio, or on the basis of existing partner's capital account balance. चलिए इसमें फर्स्ट देख लो कौन सा है, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के ऊपर देखो. नाउ इफ द कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल and his profit sharing ratio. So therefore the capital of other partner is ascertained by dividing the total capital as his per profit sharing ratio. ठीक कर लेना इसको, है ना. Then if the existing capital of the partner after adjustment is in excess, so excess of his new capital, the excess amount is withdrawn by the partner or transferred to the credit of his current account. कहां पर ट्रांसफर की जाएगी? क्रेडिट साइड पे, इसमें करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के अगर सपोज विथड्रॉ की है तो. एंड इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर इज लेस देन द न्यू कैपिटल, नाउ इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल जो पहले का कैपिटल था उसके कंपेयर में जो न्यू कैपिटल आ रहा है अगर वो लेस है, the partners bring the short amount or makes transfer to the debit side of the current account. तब कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा वो? डेबिट साइड पे. So the journal entry are made as under. चलिए ये सारी चीजें कैसे आप प्रैक्टिकल देखोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा. थियोरेटिकल बहुत ज्यादा क्या समझ में नहीं आता है. So when excess amount is withdrawn by the partner or transferred to current account, उसकी एंट्री क्या आएगी? सीधी सी बात है, आपको पता है कि कहां पर ट्रांसफर होने वाला है, पार्टनर्स के अकाउंट में. So existing partners capital account to bank account, or we can say as a partners current account. Now the next one is to bringing in the deficit amount or balance transfer to the current account. So bank account or a partner account to existing partners capital account, bringing the deficit amount of balance transfer to current account. हमें जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मेट है हम उसी के अंदर एंट्री करेंगे, तो क्या इजीली आपको ये चीज याद आ जाएगी. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 35. Asha and Bobby are partners sharing profit in the ratio of 5:3 with a capital of 80,000 and 70,000 respectively. They admitted a new partner, Nitin. The new profit sharing ratio of Asha, Bobby and Nitin is 5:3:2 respectively. Now the Nitin brings 40,000 as a capital. देखो नितिन कितना लेके आ रहा है 40,000. यहीं पर अगर कंपेयर किया जाए तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उनका कितना था 80, इनका 70. तो एग्जिस्टिंग के कंपेयर में जो न्यू आ रहा है वो लेस है. करेक्ट? क्या दिख रहा है? लेस अमाउंट दिख रही है. सो नितिन देखिए यहाँ पे कितना लेके आ रहा था 40,000 एज ए कैपिटल ला रहा है. किसके कंपेयर में? यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंपेयर में जो न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेके आ रहा है वो बहुत ही कम है. The profit on revaluation of asset and reassessment of liability is 6,400. Now it is agreed that the capital of partners should be in the new profit sharing ratio. Calculate new capital of each partner. देखिए ये वाला जनरली सब आपको मे बी
2 से 3 मार्क्स में देखना जरूर मिल सकता है। कैलकुलेटिंग ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, करेक्ट। बराबर, ये आगे हमारा सॉल्यूशन पे क्या है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ आशा एंड बॉबी। इनका एक्चुअल कैपिटल क्या था पहले तो वो देख लो। बैलेंस इफ कैपिटल, बैलेंस इफ कैपिटल 80,000 70,000, करेक्ट। कितना है 80,000 एंड 70,000। देन द प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। प्रॉफिट मिला इनको किसका, रीवैल्यूएशन का, कितना 6,040 टोटल अमाउंट दे दी गई है। बट ये टोटल अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि उनके टाइम का ना अभी नितिन ऐड होगा तो उसे तो अभी भी मिलेगा। किसको मिलेगा ये, ओल्ड पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में, उनके 5:3 के रेशियो में आप कितने 6,400 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट। ये चीज करनी है डिस्ट्रीब्यूट। एड प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन 5/3, 4,000 आशा को, बॉबी को मिलेंगे 2,400। नाउ देन कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, दैट मींस ये एडजस्टमेंट हुई तो टोटल अमाउंट कितनी होगी इनकी 84,000 किसका, आशा का है ना, बॉबी का टोटल क्या है 72,400, करेक्ट। चलिए यहां पर अभी तक क्या मिला आपको, कैपिटल मिल गया, किनका, ये दोनों का, आशा एंड बॉबी का। नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। नितिन शेयर इन द फर्म इज 2/10। 2/10 कहां से आया, न्यू शेयर देखो 5:3:2, करेक्ट। तो हर एक का अगर इसका टोटल निकाल लो, टोटल कितना हुआ 10, नितिन का कितना है 2, दैट मींस क्या हो गया 2/10, करेक्ट। नितिन शेयर ब्रिंग्स कितना 40,000 फॉर 2/10 शेयर। नितिन कितना ला रहा है 40,000 एज ए कैपिटल लेके आ रहा है और उसे कितना शेयर मिलेगा 2/10 शेयर के हिसाब से उसे मिलेगा। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म इन टर्म्स ऑफ नितिन्स कैपिटल। अब यहां पे चलो अगर हम एक अनुमान लगाते हैं कि अगर नितिन 40,000 लेके आ रहा है, अगर इसी अमाउंट को पूरे फर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर इसको ऑपोजिट कर दो, दैट मींस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन द टर्म्स ऑफ नितिन्स कैपिटल इज 40,000 इनटू 10/2। यहां पर आप क्या कर रहे हो 10/2 कर रहे हैं, तो टोटल कितना आ गया 2 लाख रुपीस। अब इस 2 लाख को आशा's न्यू शेयर इन द न्यू कैपिटल कितना है 2 लाख इनटू 5/10। बॉबी शेयर इन द न्यू कैपिटल इज 2 लाख इनटू 3/10। कितनी अमाउंट आ गई सफिशिएंट 1,60,000, क्लियर। देन अब यहां पे क्या करो, कंपेयर करो कि कहां पर आपको अमाउंट ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, करेक्ट। सो on comparing Asha's adjustment capital with the new capital, we find that Asha brings 16,000। कैसे पता चला कि आशा 16,000 लेके आ रही है, क्योंकि 1 लाख रुपीस था यहाँ पे, देन उसका कैपिटल कितना था, है ना, क्योंकि नितिन इतना लेके आ रहा है तो उस हिसाब से आशा कितना आएगी 1,84,000 था उसका, तो और द अमाउंट में बी डेबिटेड टू हर करंट अकाउंट। बताया गया था हमने इसके ऊपर भी सबसे पहले पढ़ा कि पर एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल न्यू पार्टनर कंपेयर में लेस हो तो कहा जाता है डेबिट साइड। नाउ on comparing the Bobby's adjustment capital with the new capital, we find that the Bobby is to be withdrawn। सीधी सी बात है कि कितना विड्रॉन किया 12,400। why देखिए 72,400 minus 60,000 और amount which may be credited to his current account, correct। चलो just a second, देखिए यहाँ पे आगे पीछे हो गया, अगर क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन होगा, पता नहीं चल रहा है ना आपको क्यों। देखिए यहाँ पर एक्चुअल कितना था 60,000, ना इनका टोटल कितना था 72,400, करेक्ट। देखिए ना दैट मींस यहाँ पर क्या हुआ, इतनी अमाउंट लेके आया है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है ये यहाँ पर दिखा रहा है, बट यहाँ पर रिमेनिंग अब कितना बचा है 60। दैट मींस कितनी अमाउंट उसने ले ली होगी एक्स्ट्रा, कितनी ले ली भाई 12,400 रुपए ज्यादा विड्रॉ कर लिए किसने, बॉबी ने। तो इस तरीके से देखा जाए तब आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि आइदर डेबिट जाएगा या क्रेडिट। सो व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज कैलकुलेटेड इन द प्रोपोर्शन टू द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, चलो देख लो किस तरह से आएगा। समटाइम्स सो
sometimes the capital of new partner is not given, he she is required to bring an amount proportionate to his and her share of profit. In such a case, new partner's capital will be calculated on the basis of adjusted capital of the existing partner. किसके बेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका प्रॉफिट? उनके कैपिटल के हिसाब से, कि भाई किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको उसी हिसाब से हम रिटर्न भी देंगे। Now, for example, the capital account of Sumit and Anu. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आ गया हम। चलिए, the capital account of Sumit and Anu show the balance after all adjustment and revaluation as 90,000 and 60,000 respectively. Correct. So they admitted, now here they admitted Rohit as a new partner for 1/4 share in the profit. Rohit's capital is calculated as follow. देखिए टोटल शेयर, क्यों टोटल शेयर? क्योंकि यहाँ पर किसी के शेयर बताए नहीं गए कि किसका कितना शेयर था, इसलिए एक अजम्पशन किया गया है। करेक्ट, क्या करा है? अजम्पशन किया है। टोटल शेयर कितना ले लिया? 1। रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/4, मतलब कितना भी फर्म को प्रॉफिट हो उसमें से वो कितना लेगा? 1/4 शेयर तो ले लेगा, तो बाकी कितना बचेगा? टोटल शेयर 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। लास्ट में कितना बचेगा? 3/4, जो किसको? सुमित और अनु के लिए बचा है। भाई अब तुम दोनों को 3/4 अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। करेक्ट। चलो नाउ अब देखो वैल्यू बताइए यहाँ पे 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट कंबाइंड कैपिटल ऑफ सुमित एंड अनु। सुमित और अनु का कंबाइंड कैपिटल कितना है? 90,000 and 60। टोटल कितना हो गया? 150। करेक्ट, क्या हो गया? 150। जब आपको यहाँ पर कैपिटल फाइंड करना होगा, जब यहाँ पर आपको कैपिटल फाइंड करना, टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, तब क्या करेंगे? 150 3/4 था, इसे कर दोगे 4/3। रीजन पूछोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, हम क्यों इसे ऐसा करें? क्योंकि जब आप किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूट शेयर लेते हो, है ना, या प्रॉफिट और लॉस को अपने में क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो, उस अमाउंट को डिवाइड करते हो, तब आप क्या करोगे कि आपका प्रॉपर जो शेयर है उस शेयर के अमाउंट के साथ नीचे टोटल करते हो, है ना, तब आपको क्या मिलेगा? एक बड़ी अमाउंट में से आप पार्ट करते हो और वो सारे पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। करेक्ट, इस तरीके से होता है। बट जब कैपिटल की बात की जाए, जब कैपिटल की बात की जाए उस टाइम के पास, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास टोटल जो कैपिटल था वो तो है ही नहीं, तो यहां पर आप क्या करोगे? उनके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और नीचे क्या होता है उनका? टोटल, तो इसको शफल कर दो, ये नीचे आ जाएगा। दैट मींस यहां पर जो आपने अमाउंट जो शेयर प्रॉफिट निकालने के लिए डिवाइड की होगी, और डिवाइड भी किस बेस पे होगी? जितना टोटल होगा, जैसे ऊपर 2 2 2 बराबर 5 पार्टनर है तो नीचे 10 होगा। करेक्ट, दैट मींस नीचे वाले अमाउंट से क्या पता चल जाएगा कि भाई टोटल 10 लोग थे या 10 हिस्से हुए, व्हाटएवर, फिर हर किसी ने कितना भरा, लेकिन टोटल क्या है? 10। तो इस अमाउंट को अगर डायरेक्ट में कैपिटल के लिए फाइंड कर लूं, मुझे क्या मिल जाएगा? कैपिटल ऑफ द फर्म मिल ही जाएगा। रही बात शेयर ऑफ प्रॉफिट की, इसे नीचे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि भाई यही चीज तो इतने टाइम्स डिवाइड हुई थी, तब जाके इसके नीचे भी लिख रहे हैं। देखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1/50 into 4/3, सो कितना मिल गया आपको? 2 लाख रुपीस। ये क्या है? 2 लाख रुपीस आपका क्या है? कैपिटल है किसका? आपके फर्म का। करेक्ट, डायरेक्ट मिल गया। कितना हो गया कैपिटल? क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे अमाउंट आपको दी थी, तो इस बेस पे पता तो चले कि कितना मिलेगा और कितना उसको प्रॉफिट लाना होगा। यहाँ पर आपका क्या है कि इसका कैपिटल मिसिंग है, दैट मींस वो फॉर्म में तो लेके आया, बट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि रोहित का ऐसा रोहित कैपिटल लाया कितना, तब जाके आपको फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर देखो फॉर्म का टोटल आ गया, बराबर। हमको यहाँ पर क्या करना था कि भाई टोटल निकालना था किसका? फॉर्म का, कि फॉर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है ना, और वी कैन से ऐसा कि क्या उनका टोटल कैपिटल क्या था,
टोटल कैपिटल क्या था वही फाइंड आउट करना था। पहले तो फाइंड आउट कर लिया कि 3/4 शेयर सुमित और अनु को मिलेगा। चलो तो कोई बात नहीं, अनु और सुमित और अनु का टोटल कर लो। नाउ कितने पे वापस देना है, 4/3 पे। आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल कैपिटल ऑफ फर्म यहां मिल गया। देन रोहित कैपिटल ऑफ कितना था, उसको कितना देना था, 1/4 शेयर देना था, किस में से, प्रॉफिट में से। दैट मींस 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2 लाख into 1/4, it's a 50,000. So Rohit brings in 50,000 as a capital. तो रोहित कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 1/4, that means 50,000 as a capital लेके आ रहा है। कौन, रोहित। 2 मार्क्स में आपको बेसिकली पूछा जा सकता है करियर सम आया तो, है ना, हार्डली 2 मार्क्स में तो आएगा ही, 2 या 3 मार्क्स में इजीली पूछ लेते हैं लोग। तो ऐसा सम की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ही जल्द करके देखने मिलेंगे ये सारे सम आपको, है ना। चलो नेक्स्ट आता है हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 26 पे, सॉरी इट्स 36। Manoj and Hema are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3. On March 31st, 2014, their balance sheet was as follow. चलो क्या दी, इनकी बैलेंस शीट दे दी गई है, किसकी, मनोज और हेमा की। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व्स, गुडविल, बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर एंड बैंक। करेक्ट, ये सारी चीजें दे गई है। एडजस्टमेंट है, देख लो किस तरीके का है। नाउ दे एडमिट तरुण इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किसको एडमिट किया उन्होंने, तरुण को। सो स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 40,000। चलिए ये सारी चीजें तो हम अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट है, डायरेक्ट पहले देख लेते हैं कि क्या प्रिपेयर करना है। नाउ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट, तो ये चीज आपको प्रिपेयर करनी है। चलो बना लो, फर्स्ट revaluation account, second partners capital account, then the third one is balance sheet and the last one is bank और cash book we can say, है ना। चलिए ये तो वर्किंग है आपकी यहाँ पर सारी, ठीक है। चलो बना लेना आप लोग सब। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। सो स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 40,000। यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, 40,000। लेकिन चलो चेक करें कि कम हुई है ज्यादा हुई है। स्टॉक कहाँ दिख रहा है, जल्दी से, ये रहा स्टॉक। कितना हो गया, स्टॉक कितना है यहाँ पे 35,000, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 40,000। दैट मींस एसेट साइड पे उसकी वैल्यू बढ़ गई है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 5,000, है ना। और नेक्स्ट एंट्री का आएगी, एडजस्टमेंट की हमेशा 2 एंट्री होती है, एक आ गया रिवैल्यूएशन में, दूसरी एंट्री का आएगी बैलेंस शीट में। अमाउंट कितनी हो गई 40,000, तो उसकी इफेक्ट वैसे ही देनी होगी। सो स्टॉक की अमाउंट कितनी हो गई 40,000, करेक्ट। देन बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट आर डेप्रिशिएटेड बाय 12%। That means आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट, इन सभी का कितना परसेंट, 12% आपको काउंट करना है ना। कॉमन सेंस ही बात है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लेस होना। दैट मींस उसकी जो पर्टिकुलर अमाउंट है 12% अब कम हो जाएगी, तो एसेट की वैल्यू तो कम हो गई। कम होती है तो कहाँ आती है, हमारे डेबिट साइड में, करेक्ट। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, बिल्डिंग 5400, मशीनरी 4800 एंड इन्वेस्टमेंट इज 1560। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंट्री कहां पे जाएगी इसकी, बैलेंस शीट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं, जो उनकी अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन। द टोटल कितना मिल जाएगा उनका, लेस करके अमाउंट बाहर कर दो बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। चलिए ये अमाउंट मिल गई इन्वेस्टमेंट की 11,440, मशीनरी 35,200 एंड बिल्डिंग इज 39,600। आप लोग कैसे में करो, आराम से आपका आंसर आएगा ही पूरा सेम ऐसे ही आएगा। चलो देन प्रीपेड इंश्योरेंस, इट्स अ प्रीपेड इंश्योरेंस इज रुपीस 1,000। सो
इज इट हियर इज एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस और समवेयर एल्स? नो। तो यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस है नहीं, तो क्या ये यहाँ पर आएगा? आएगा क्या मुझे बताओ? कि प्रीपेड इंश्योरेंस है। कैसा इंश्योरेंस? प्रीपेड है, दैट मींस आपको पे तो करना था बट आपने एडवांस में पे करके रख दिया, करेक्ट? सो प्रीपेड इंश्योरेंस इट कम्स ऑन दी दिस साइड। कहां पर? क्यों? क्योंकि आपने देखिए इंश्योरेंस आपके लिए बोल सकते हैं कि लायबिलिटी जैसा हो गया, मुझे पे तो करना ही होगा, लेकिन आपने ऑलरेडी अगर पे कर दिया तो आपकी लायबिलिटी अब कम हो गई, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस किधर आएगा? 1000 यहां पर। नेक्स्ट एंट्री कहां पर आ जाएगी? बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, करेक्ट? देन Tarun brings 40,000 as his capital and 12,000 as goodwill for 1/6 share of profit of the firm. चलिए अब बात कहां पर आ गई? तरुण, that means जो न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है। सबसे पहले देखो मनोज एंड हेमा का कैपिटल कितना था? 88,000 एंड 64,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में पहले इनका लिख दो, बैलेंस पीडी 88,000 एंड 64,000, करेक्ट? रिस्पेक्टिवली उनकी इतनी अमाउंट तो यहां पर आ जानी चाहिए। नाउ देन यहां पर अब क्या बताया गया कि कौन? तरुण कैपिटल ला रहा है कितना? 40,000 का लेके आ रहा है। तो चलो इसकी इफेक्ट दे दो पहले तो। ये रहा भाई, तरुण क्या लेके आ रहा है? 40,000 की अमाउंट। सो जस्ट अ सेकंड, बैंक अकाउंट तरुण। देखिए यहां पर दो तीन चीज मिक्स कर दी गई है। ये क्या सपोज ये अलग से एंट्री आ जाएगी, कुछ अलग ही किया हुआ है ना? ये तरुण की अमाउंट कितनी है? 40,000। अदरवाइज तो दूसरी बार भी कोई होगी बैंक एंट्री, और ये वाली एंट्री यहाँ पर आएगी, है ना? एक ही बार में एक ही एंट्री आती है पहले, बैंक के नाम से पहली जो एंट्री वो उधर ही आएगी, अलग अलग नहीं आती है। यहाँ पर कौन सी होगी? 40,000 की है। साथ साथ दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? हमारे बैंक अकाउंट में, क्योंकि कैश एंड बैंक प्रिपेयर करने बोला है, यहाँ पर आएगा। बैलेंस बीडी 12,000 कैसे आया? बैंक बैलेंस दिया हुआ है कितना है? 12,000 का बता रहा है आपको, करेक्ट? सो बैलेंस पीडी 12,000 बराबर इतना आ गया ना। तरुण कैपिटल कितना है? 40,000 वो लेके आ रहा है, क्लियर? ये चीज बताई गई थी आपको, कितना ला रहा है? 40,000 एंड 12,000 फॉर गुडविल और फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल की अमाउंट कितनी ला रहा है वो? गुडविल भी ला रहा है, तो गुडविल अकाउंट जो चीज लेके आ रहा है बतानी पड़ेगी बैंक में 12,000। नाउ मेन पॉइंट क्या है अब यहाँ पे कि तरुण गुडविल जो रहा है 12,000, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो तो फाइंड करना होगा। चलिए तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। सपोज वी कैन अंडरस्टैंड कि चलो 1 होगा, है ना? प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पे? 1। So Tarun gets 1/6 share, remaining profit कितना हो गया? 5/6। तो share of Manoj and Hema in their existing profit sharing ratio। यहाँ पर क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो तो पता चले, क्योंकि जब तक न्यू रेशियो नहीं आएगा तो ओल्ड और न्यू को हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैसे मिलेगा, करेक्ट? सो मनोज न्यू प्रॉफिट कितना? 5/6 रिमेनिंग है इनटू 7/10। ऑलरेडी हम लोग ये चीज स्टार्टिंग में ही सीख चुके कि न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट किया जाए, बराबर? 7/12। देन हेमा का भी शेयर इस तरीके से निकाला 3/12 एंड कितना 1/6 था इसका, तो इसका कितना था 1/6, बस मेरे को डिनोमिनेटर क्या चाहिए सेम, तो 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, दैट मींस 2। तो ये क्या हो गया 2/12। यहां पे इसलिए कैसे आ गया 2 आ गया यहां पे, करेक्ट? इसलिए इधर यहां पे क्या आ गया आपको 2 अमाउंट लिखी आ गई, करेक्ट? नाउ अब इसका क्या हो गया आपको रेशियो मिल गया कि कौन से रेशियो में आया इनके पास, है ना? चलो ये न्यू रेशियो मिल गया आपको, यहां पे आप फाइंड कर लो, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो 12,000 को एज पर उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आ गया ना, ये गुडविल की अमाउंट ये रही उनकी, गुडविल 8400 एंड 3600 आ गया यहाँ पे, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पे 7:3 के ऊपर, बराबर? 7:3 के बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, करेक्ट? चलिए देन
कैपिटल ऑफ पार्टनर्स शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड बाय कैश। क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, बट किसकी, कैपिटल के रिगार्डिंग। सो कम्स टू अवर वर्किंग एडजस्टमेंट कैपिटल। तरुण कितना लेके आ रहा था, कैपिटल कितना चाहिए उसे, 1/6 शेयर कितना, 40,000 तो लेके आ रहा है। सो सेम कैपिटल फाइंड करना है, बताया था आपको, चेंज कर देंगे तो टोटल कैपिटल फाइंड करो। क्योंकि क्या यहाँ पे क्या बता दिया है कि भाई 1/6 शेयर तो मिल चुका है उसको, कितना, 40,000। दैट मींस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000 इनटू रेशियो चेंज कर दो 6/1, दैट मींस 2,40,000 होगा। ठीक है, रेशियो कितना हो गया, 2,40,000। तो इन सबका कैपिटल फाइंड आउट कर लो। मनोज कैपिटल 2,40,000 7/12 1/40, हेमस कैपिटल 2,40,000 3/12, you get 60,000, and Tarun's capital 2,40,000 into 2/12, you will get 40,000, करेक्ट। ये सारे अमाउंट को अभी यहीं पर रहने दो, पहले क्या करो, सब चीज के क्लोजिंग कर दो, देन ये अमाउंट आएगी, है ना। चलो देन ये सारी चीज हो चुकी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करो, क्लोज, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, क्योंकि भाई रीवैल्यूएशन के अंदर कोई अमाउंट में चेंज होगा तभी उस पे एंट्री आती है, करेक्ट, अदरवाइज तो आएगी, बाकी सब में आएंगी जरूर। सो क्या है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड का ज्यादा है, तो क्या है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस आया है आपको, सो तो लॉस ट्रांसफर होगा कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल में। रेशियो कौन सा उनका, 7:3 में, है ना, 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रीवैल्यूएशन ऑफ लॉस, बराबर। अभी तक की यहां तक की एंट्री देखो, अब आगे रुक जाना। देन अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें जो बाकी है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो सारी चीजें लिखते चले जाओ। जैसे सन्डे क्रेडिटर है, इसका कुछ नहीं है, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट में, सन्डे क्रेडिटर। ऐसे ही बिल्स पेबल 38,000, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल 38,000। देन रिजर्व जो होता है वो पार्टनर अपने पैसों में से इकट्ठा करके एक बना के रखते हैं, कितना है, 18,000। सो वी कैन से एज अ रिजर्व जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, किस बेसिस पे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ये रहा रिजर्व की एंट्री, है ना, 7:3 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, करेक्ट। देन नेक्स्ट कौन सा है, बैंक। बैंक की तो ऑलरेडी हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर है ना हमारा बैंक के रिगार्डिंग, तो इसको क्लोज करेंगे तभी अमाउंट आएगी हमारे पास, बराबर। चलो सन्डे डेटर्स कितना है, 4500, सन्डे डेटर्स कितना है, 4500, तो 4500 यहाँ लिख दो बैलेंस शीट में। जब कोई एंट्री नहीं होता एज इट इज वैसे ही लिखना है आपको। देन बिल्स रिसीवेबल कितना था, 30,000, तो लिख दो बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल 30,000, करेक्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा हो चुका है, बराबर। चलिए अब यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट सम कैसा है, ये रिवर्स सम है, करेक्ट। याद रखना कि सम कैसा है, रिवर्स सम है। ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग ने कैपिटल तो फाइंड आउट कर ही लिया है, करेक्ट। क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, यहाँ पर कैपिटल फाइंड आउट कर लिया है ना। याद रखना कि जो बैंक अकाउंट है वो आप क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्लोज नहीं करना है। कैपिटल देखो फाइंड कर लिया ना, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, वो कैपिटल यहाँ पे फाइंड हो चुका है, करेक्ट। सो कितना था कैपिटल, मनोज कैपिटल, फेमस कैपिटल, तरुण कैपिटल 1,40,000 60,000 एंड 40,000। तो बैलेंस शीट में इसकी अमाउंट रखो पहले। ये रिवर्स सम है, ऐसे सम क्या होते हैं, रिवर्स सम है। सो कैपिटल अकाउंट लिख दिया, मनोज 140, हेमा 60 एंड तरुण 40, बराबर। अभी तक ये अमाउंट मिल चुकी है आपको, पर अब इसके आगे देखिए कुछ मत करना, बैंक अकाउंट को आपको भी क्लोज नहीं करना है, डायरेक्ट उन्होंने बता दिया आपको अमाउंट, आपकी बैलेंस शीट अमाउंट कितनी होगी, यही चीज आपने ट्रांसफर करी है वहां पे, है ना, यही चीजें आपने वहां पर ट्रांसफर की है, बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहाँ पर आपको गुडविल दिया था, पार्टनर का गुडविल होता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में, दो ही पार्टनर है, तो ये रहा उनका गुडविल के अमाउंट 14,000 एंड दी 60,000, करेक्ट। चलिए ये भी हो चुका है ना, स्टार्टिंग का था हमारा। तो
अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या आएगा कि आपको करना है हर एक चीज का क्लोजिंग। करेक्ट, क्या करना है यहाँ पे हर एक चीज की क्लोजिंग करनी है। और उसकी हम इफेक्ट कहाँ देंगे, हमारे जो बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है, क्योंकि बैंक अकाउंट को भी क्लोज करना होगा, बैंक अकाउंट को भी क्लोज करना है हमको, इसलिए बैंक अकाउंट अभी क्लोज नहीं होगा। सबसे पहले उससे पहले आप क्या क्लोज करोगे, यहाँ पे उससे पहले क्या क्लोज होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो तो टोटल करो कि कौन से साइड अमाउंट ज्यादा है, बस इतना चेक करो। सो बेसिक बात है, यहाँ चेक करो और यहाँ पे टोटल करो, है ना। कहां पर हो जाएगा, ये अमाउंट ज्यादा है, दैट मींस मनोज जो है वो क्या ला रहा है, डेबिट बैलेंस है, इसका बैलेंस अमाउंट कितनी हुई 49,032। दैट मींस ये अमाउंट कहां पर जाएगी, बैंक में जाएगी, दैट मींस इतनी अमाउंट उसे मिल रही है। करेक्ट, लॉस है ना उसके लिए, इतना पे करना पड़ेगा, किसको, मनोज को। हेमा के साइड अगर टोटल देखा जाए तो कौन साइड ज्यादा है, हेमा में। हेमा का क्या बन रहा है, क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 5,272, जो कहां जाएगी, बैंक अकाउंट में। करेक्ट, देखिए बस यहां पर इन लोगों ने क्या किया है, बैंक अकाउंट में दो चीज एक साथ कर दी, और ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज यहां पे अलग से आपको बैंक अकाउंट लिखना होगा, और ये जो अमाउंट है 49032 वो इधर आएगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए था, कैपिटल था तरुण के लिए। दूसरा स्टेटमेंट आना चाहिए जो बैंक में ट्रांसफर होगा, एक के अंदर कभी नहीं लिखोगे आप। करेक्ट, देन 40,000 था, ये तो एज इट इज इधर ही आ गया। करेक्ट, देखो क्या है 90,000 आया, बैलेंस आ गया 90,000, ये लिखा हुआ इधर भी, है ना। नो देखिए यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक करी है लोगों ने, 90,000 कहाँ से आ सकता है, 9 हो गए तो 40,000 है, 40,000 है, ये मिस्टेक है, ये 40,000 है, बाय मिस्टेक किया। चलिए तो जो रिस्पेक्टिव अमाउंट आई इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मनोज कैपिटल लॉस आया था, इधर आ जाएगा, इतना प्रॉफिट सॉरी उसे मिल रहा था इधर। देन हेमास कैपिटल अकाउंट कितना आया इसका 5272। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को क्लोज करो, 1,13,032 हो गया। देन नेक्स्ट यहां पर रखिए इसमें से रिमेनिंग बैलेंस सीडी कितना मिल गया 1,07,760। अब इस पर्टिकुलर अमाउंट को आपको ट्रांसफर कहां करना है, बैलेंस शीट में, कहां पर, बैंक अकाउंट 1,07,760। अब आप इसका टोटल करो तो ये अमाउंट आपकी यहाँ पे टैली हो जाएगी। करेक्ट, ये इसे ऐसा ज्यादातर ये सम को क्या बोला जाता है, रिवर्स सम बोलते हैं। मे भी अगर हार्डली अगर देखा जाए तो शायद एग्जाम में कुछ इस तरीके का पूछा जाए, अदरवाइज इजी ही आएगा, बट अगर ये आता है तो आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना ऐसे सम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ही समझ आएगा। बराबर। एक्सरसाइज नंबर 23.5, चलिए क्या बताया गया, तनु एंड अनु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Sumit as a new partner for 1/5 share in the profit and brings 50,000 for his capital. The capital of the Tanu and Anu after the adjustment बोला गया, देखिए तो कितना है 95,000 and 90,000 respectively. So calculate the total capital of new firm and capital of each partner on the basis of new partner's capital. करेक्ट, ये भी सारी चीजें आपको फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने हमारा जो पिछले इलस्ट्रेशन किया है उसी के रिगार्डिंग है। आंसर आपको पीछे दिया हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना आ जाएगा 2,50,000 एंड जो तनु और अनु का पार्टनर्स कैपिटल कितना मिल जाएगा 1,20,000 एंड रिस्पेक्टिवली 80,000। दैट मींस जो रिमेनिंग अमाउंट हुआ है ना, कैपिटल तनु का कितना है 120, अनु का है 80, दैट मींस यू गेट 20 लाख, सॉरी इट्स 2 लाख एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट मींस 50,000 of whom, of a new partner who is Sumit. Correct, क्योंकि सुमित कितना 50,000 तो उसे मिल चुका है ना, brings for his capital। सीधी सी बात है, फाइंड आउट कैसे कर लोगे, कैसे आपका अमाउंट निकल जाएगी पता ही होगा ना। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 50,000 ऐसे कैपिटल है तो 5/1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000 आ गई। करेक्ट, देखिए ये अमाउंट आपको कैसे पता चलती है कि भाई इसे 50,000 लानी थी, ये इतना लेके आया है, तो अजम्पशन कि भाई एक शेयर कितना मांग रहा है 1/5, दैट मींस कितनी अमाउंट ऐसी आएगी तब जाके 50,000 आएगा। तो सीधी सी बात है,
2,50,000 को अगर 1/5 करता हाँ तब जाके इसकी अमाउंट कितनी आती, 50,000 आ जाती। तो इतना ढूंढने के चक्कर में इससे अच्छा डायरेक्ट यही करो कि भाई जो अमाउंट दी है ऑपोजिट कर दो इनटू 5/1, दैट मींस कि फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना होगा 2,50 को उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में। क्लियर? 3:2 में इसको देखिए 2,50 में से 50 तो गया, नेट बचा कितना 2 लाख रुपए, है ना। उसको किसके उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, 3/2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपको आपकी अमाउंट इजीली मिल जाएगी। बराबर, जैसा पहले इलस्ट्रेशन में किया था वैसा ही करना और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव लर्न, चलिए ये सारी चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, ये वही है। इसे अच्छे से याद कर लेना, है ना, क्योंकि जनरली एमसीक्यूज भी निकलते हैं इन्हीं में से। देन व्हाट इज मीन्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। चलिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने मिल जाएंगे, है ना। दैट मीनिंग ऑफ गुडविल, देन एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, explain revaluation account, why assets are liabilities at the time of admission of new partner, explain the treatment of accumulated profit or losses and reserves at the time of admission of a new partner, then explain the calculation of the proportionate capital of new partner in the case of admission of partner। हार्डली ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में मिल सकते हैं आपको। देन देखिए इन सभी के आपको आंसर अगर चाहिए तो हमारे पीछे साइड दे के रखे हुए ये इन सभी के आंसर भी दिए हुए। नो डाउट जो प्रैक्टिकल पूछा गया है, प्रैक्टिकल के आंसर जो थियोरेटिकल है ऑलरेडी आपको व्हाट यू हैव लर्न मिल जाएंगे। देखिए इसके अंदर आपको अपने आंसर मिल जाएंगे, जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मीनिंग ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, करेक्ट, सारे ऑर्डर वाइज ही दे दिए गए आंसर, है ना। तो इसी में से आपका आंसर मिल जाएंगे। याद रखना कि एग्जाम में जिस मार्क्स के लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा, है ना, वेटेज पता होना चाहिए। देन 7th 8th ये सारे हम सम ऑलरेडी आगे कर चुके हैं, जस्ट प्रैक्टिस वर्क के लिए दिया हुआ है, तो आप ये सारी चीजें कंपलसरी करनी ही होगी, है ना। देन 3 लाख का सेम दिया हुआ है, बैलेंस शीट तरुण एंड आशिमा के नाम से दी हुई है। एट द एंड देखो प्रिपेयर क्या करना है, सिंपल एकदम, हमने जो स्टार्टिंग में हमारा सम आया था रिवैल्यूएशन का उस तरीके का ही, क्या नेसेसरी लेट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, दैट्स इट। दैट मींस कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आप बना के बता रहे हो तो उसमें कोई बात नहीं, वर्किंग में दिखा लो, बराबर। 11th वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है सेम, सी एक एडमिट हो रहा है तो आपको जनरल एंट्री देनी होगी, स्पेसिफिक एंट्री दो, करेक्ट। ये जितने भी सम है ना ये सारे सम आप लोग को करना है, ये तभी जाके आप आएगा, करेक्ट, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सही है ना। चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 23 भी कंप्लीट हो रहा है।